Good morning, children. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 24 Animals and their Habitats. तो चलिए शुरू करते हैं. Children, in this chapter we will be learning about the different types of animals and their habitats. Habitat means the area or the place where they are living. ठीक है? So I will read it for you. We will find animals in almost every place on the earth, from the hottest deserts to the coldest continents. Okay, means you can find animals in hottest deserts, hottest place also, in cold place also, in uh, the places where there is a lot of rainfall also, swampy area, that is called swampy, means दलदल वाले इलाके. ठीक है? So everywhere you will find animals. So you have to uh, read about some animals living in different habitats and how they adapt themselves to their habitats. जिस तरीके से हम लोग, like we are living in India, so India is not very cold country, it's a warm country where we have different types of seasons. We have winters, summers, monsoons. Okay, so वी हैव अडेप्टेड, हम लोगों ने अपने आप को इसी मौसम के हिसाब से ढाल लिया है. वी हैव अडेप्टेड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस. सो लाइक वाइज अस, जैसे कि हम लोग करते हैं वैसे ही एनिमल्स भी करते हैं. तो एनिमल्स भी जिस जगह रहते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसी मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं. ठीक है? तो like the countries in the north, like American continents, Russian continents and European continent, there are, we will find lots of animals over there. So they have also adapted themselves according to the environment. And the hottest continents like South America, like Africa, you will find the animals living there, and they have adapted themselves according to the hot climate. So we will learn about these some animals in this chapter. The first one we will see that pangolins. Now, found in Africa, Africa is a continent, and Asia also. Found in Africa and Asia, pangolins are mammals with scales instead of hair on their bodies. Scales means like you see the scales in a snake. आपने सांप को चलते हुए देखा तो it moves with the help of scales. उसकी बॉडी में मतलब स्किन होती है. There are no hairs on the body. ठीक है? पूरी स्मूथ स्किन होती है. And this type of animal is very shy and rarely seen. ठीक है? ये छुप के हमेशा रहता है. When in danger, they curl into a ball and let out a foul smelling secretion. और जब कभी अपने आप को खतरा महसूस करता है किसी दूसरे जानवर से, तो ये क्या करता है, अपने आप को एक बॉल के रूप में बना लेता है. मीन्स इट कर्ल मीन्स गोल गोल घूम कर अपने आप को रोटेट करके एक बॉल बन जाता है. ठीक है? अपनी बॉडी को बिल्कुल मोड़ लेता है और बॉल बन जाता है, और एक फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल सिक्रीट करने लगता है अपनी बॉडी से, ताकि कोई भी जानवर इसके आसपास आने आएगा. क्योंकि उसको इतनी गंदी स्मेल आएगी तो क्यों आएगा उसके पास. ठीक है? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईल्स आर फिश दैट लुक लाइक स्नेक्स. ठीक है? There are hundreds of different types of eels. Many species of eels live in warm, salty seas and oceans. Freshwater eels live in rivers, lakes, and ponds. Eels breathe through gills as fishes do. But freshwater eels also can absorb oxygen through their skin. Okay? So eels, how do eels look like? There is the diagram of photo given in your book. Eels look like snakes. Okay? कैसे वो जस्ट जैसे स्नेक मूव करता है ना अर्थ ग्राउंड पे, वैसे ये पानी में भी वैसी सेम स्नेक की तरह ही मूव करती हैं. बट ये होती क्या है, ये फिश होती हैं. ठीक है? जैसे फिश सांस लेती है ना, अपनी कैसे सांस लेती है फिश, अपनी गिल्स से, वैसे ये भी अपनी गिल्स से सांस लेती है. और ये जो ईल्स होती हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये वार्म वाटर या सॉल्टी वाटर्स में पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर्स में भी पाई जाती हैं.
सॉल्टी वाटर जिस पानी में मतलब नमक, या जैसे ओशन वाटर होता है ना, समुद्र का पानी, उसमें नमक होता है तो वो खारा पानी होता है। और फ्रेश वाटर जैसे नदियों का पानी होता है, एकदम साफ़ पानी होता है पीने लायक। तो दोनों जगह पर ये पाई जा सकती हैं। तो जहाँ पे ये सॉल्टी और उस टाइप की वाटर होता है, तो वहाँ पे ये अपने क्या यूज़ करती हैं, गिल्स भी यूज़ करती हैं। और कहीं कहीं पर ये अपनी स्किन से ऑक्सीजन, स्किन से भी ब्रीद आउट कर सकती हैं। ठीक है, सो बोथ वेज दे कैन do respiration. Now we come to the next one, that is leatherback turtles. Turtles with leather back. ठीक है, इनके पीठ पर कैसा बहुत ही हार्ड स्किन होती है, जस्ट लाइक लेदर। लेदर से भी बहुत हार्ड, बहुत मोटी स्किन होती है। सो दीज आर कॉल्ड टर्टल्स। ओके, सो टर्टल्स दे आर नॉट इन अ शेल। ठीक है, ये अपने आप को शेल के अंदर नहीं रखते हैं, जैसे कि टॉर्टोइज होता है। टॉर्टोइज और टर्टल्स में ये डिफरेंस होता है। टॉर्टोइज जो होते हैं वो एक शेल के अंदर होते हैं, एक कवच के अंदर होते हैं, वो अपने आप को उस कवच के अंदर चले जाते हैं उसके। ठीक है, बट जो टर्टल्स होते हैं उनके ऊपर कोई कवच नहीं होती, बस उनकी स्किन जो होती है वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, और उनके जो आगे के हाथ और होते हैं वो जैसे कि फ़िश की फिन्स होती हैं। ठीक है, मछलियों की जो फिन्स होती हैं वैसे ही उनके हाथ होते हैं, और उसी से वो स्विम करते रहते हैं। ठीक है, और these turtles are named so because their shell is made of leather like substance rather than the usual hard shell that other turtles have. ठीक है, इन ये अपनी शेल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो टॉर्टोइज होते हैं वो जुड़े नहीं होते, वो शेल के बाहर मतलब अंदर चले जाते हैं, बाहर भी निकल आते हैं। सो उनकी शेल बहुत मतलब हार्ड होती है, और इनकी भी हार्ड होती है, बट ये शेल जो है इनकी बॉडी से जुड़ी हुई होती है। दे आर द लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। दे माइग्रेट बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। ओ माई गॉड, दीज वैसे टर्टल्स और टॉर्टोइज में बड़ा कौन होता है? टर्टल्स बड़े होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी ह्यूज टर्टल्स। और ये कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर सकते हैं? अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक भी ये स्विम करते हुए जा सकते हैं। You can imagine that around 4 to 5 feet tall means you can say 4 to 5 feet tall, or 5 to 6 feet tall turtles are also found. एक और भी टर्टल मिला था जो कि 8 to 9 फीट टॉल था, वो बहुत लार्जेस्ट टर्टल मिला था एक बार। बट मोस्टली कितने होते हैं ये? 5 to 6 फीट टॉल्स होते हैं ये, और बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, now we come to the next one, is the Texas blind salamanders. These live in a deep aquatic underground environment. Since they live in total darkness, they have no need for vision. ठीक है, and their eyes are reduced to two black spots. Because of their restricted range and water pollution, the salamanders are vulnerable to extinction and are listed as endangered. ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर वेरी रेयरली सीन, क्योंकि ये बहुत ही नीचे रहते हैं पानी में, और जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे टोटल डार्कनेस होती है। तो जब इतनी डार्कनेस होती है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता, तो इन्हें भी देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं। तो इनकी जो आँखें होती हैं वो एकदम छोटी डॉट की तरह रिड्यूस हो चुकी हुई होती हैं, जिसका ये यूज़ ज़्यादा करते नहीं हैं। और मोस्टली ये अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इनको अब क्या बोल दिया गया है, इनको डिक्लेयर कर दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब वो होते हैं जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, उनकी जैसी कोई दूसरी स्पीशीज़ या प्रजाति नहीं मिलेगी अर्थ पे। सो दोज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज, द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, ऑल्सो नोन एज पेंटेड डॉग्स। ठीक है, दीज आर जस्ट लाइक जैकॉल्स। आपने जैकॉल्स देखे होंगे, हाइनास देखे होंगे। ठीक है, तो ये उसी टाइप के होते हैं, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दे आर डॉग्स। ओके, वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते होते हैं, और दे आर वेरी डेंजरस ऑल्सो।
They are also called painted dogs because their patched fur have big head ears. उनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, as you can see in the picture. They are mostly found in eastern and southern part. They have only 4 toes each foot, unlike other dogs. ठीक है, जस्ट लाइक अनलाइक अदर डॉग्स पे कितने होते हैं, 5 होते हैं. 4 फिंगर आगे होती हैं, क्लॉज होते हैं, और पीछे एक थंब टाइप का होता है. बट इनके कितने होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं. दे मूव इन लैक्स ऑफ 15 to 60 डॉग्स एंड हंट बर्ड्स एंड रोडेंट्स फॉर फूड. ठीक है, और ये झुंड में घूमते हैं अराउंड 15 से 60, 15 to 60 की तादाद में ये लोग झुंड में घूमते हैं. और ये झुंड में शिकार भी करते हैं, क्योंकि ये एक अकेला शिकार नहीं कर सकते. ये नॉर्मली जो हमारे यू कैन सी जो हमारे आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, ये उनसे भी पतले दुबले और छोटे होते हैं. ठीक है, और ये जंगल में तो रहते हैं, लेकिन ये अकेले शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बड़ा शिकारी मिल जाएगा तो इनको ही खा जाएगा. तो ये अकेले नहीं रहते कभी, ये झुंड में रहते हैं, और ये एक ग्रुप में ही मिलकर शिकार करते हैं. तभी ये शिकार कर पाते हैं, वरना नहीं कर सकते ये. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन इज क्लीनर wrasse और दी क्लीनर फिश. ओके, क्लीनर फिश मीन्स कोई ना कोई चीज़ ही क्लीन करती रहती होगी. क्या क्लीन करती? लिव इन द ओशंस एंड आर वेल नोन फॉर देयर रोल इन द रिमूवल ऑफ पैरासाइट्स फ्रॉम लार्जर carnivorous fishes. Oh my god. The large fishes allow them a free passage into their cavernous mouths and gill chambers, in which the cleaner wrasse feed upon leftovers and parasites. So these are cleaner fish. इनका काम क्या होता है? क्लीन करना. क्या क्लीन करना? जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, जो दूसरी फिशेस की बॉडी पे होते हैं, ठीक है, ये उनको क्लीन करती रहती हैं. आपको पता है, जस्ट लाइक शार्क और वेल, इनकी जो दांत होते हैं, इनके दांतों की जो सफाई करते हैं, जैसे वी यूज़ टू ब्रश आवर टीथ डेली, है ना, हम लोग अपने दांत की सफाई ब्रश करके करते हैं. बट शार्क्स हैं और वेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी फिशेज़ होती हैं, इनकी दांत की सफाई कौन करता है? क्योंकि ये भी तो दूसरी चीज़ों को खाती रहती हैं, बट इनके दांत भी गंदे होते रहते हैं. और जैसे कि किसी शार्क ने दूसरी फ़िश को खाया और उसके दांतों में वो खाना जो है वो फंसा रह गया, तो उसकी सफाई कौन करता है? ये उसकी सफाई ये क्लीनर फिश करती हैं. ठीक है, उनके दांतों की. बट ये कैसे होता है? आई हैव नॉट सीन इट, बट ये होता है, आई नो दिस. सो ये उनकी बॉडी की या उनके दांतों की ऐसे ही सफाई करती हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल क्लीनर फिश. नाउ नेक्स्ट इज बोआ constrictors are large non-poisonous snakes found in tropical rainforest. Boas will eat almost anything they can catch, including birds, monkeys, and wild pigs. They kill their prey by coiling around them so tightly that the animal cannot breathe. ठीक है, these are boa constrictors are the large poisonous snakes. वो कैसे दूसरे जानवर को मारते हैं? उसके ऊपर कॉइलिंग मीन्स उसको लपेट लेते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइट उसको लपेट कर उसको दबा देते हैं, ताकि वो सांस ना ले पाए जानवर, और उसकी डेथ हो जाती है, और वो उसको फिर बाद में खा लेते हैं. दे किल देयर प्रे बाय कॉइलिंग अराउंड देम सो टाइटली दैट द एनिमल्स कैन नॉट ब्रीथ. डिस्पाइट दिस डेडली स्ट्रेंथ, सम स्पीशीज ऑफ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स आर क्वाइट पॉपुलर एज पेट्स ऑल्सो. ह्यूमन्स उनको पेट्स भी रखते हैं कहीं कहीं पर. ठीक है, now this is and now we move to quick quiz. Name the semi-aquatic rodent known for building dams. That is reaver. Reaver, reaver. Next, which African mammal along with the hippopotamus ranks as the second largest land living mammal? That is rhinoceros. ठीक है, after hippopotamus is the largest land living mammal. Next is rhinoceros. Okay, next is, in which continent are anacondas found? Anacondas, you know what are anacondas? Anacondas are the large snakes, very huge and large snakes. So anacondas are found in South America. अब साउथ अमेरिका में कहाँ पे? साउथ अमेरिका में जो
अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट है या अमेज़ॉन रिवर के किनारे इस टाइप के एनाकोंडास मिलते हैं, ठीक है। इन विच कॉन्टिनेंट आर कैंगरूज फाउंड? सो कैंगरूज, यू एवरीबडी नोज दैट कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनो? राइनोसरस का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है? कहाँ रहता है वो? ग्रासलैंड्स में, जो बड़ी बड़ी घास होती है ना, उसी में ज़्यादातर वो घूमता रहता है। और वो पानी में भी जाता है बट मोस्टली वो घास पे ही रहता है, ठीक है। सो ग्रासलैंड्स। सो आई एंड अप माई वीडियो हेयर। थैंक यू चिल्ड्रेन।